السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے پیارے بھائیوں اور بہنوں، آج میں آپ کے سامنے ایسی باتیں لے کر آیا ہوں جو نہ صرف آپ کے دل کو چھو لیں گی بلکہ آپ کے یقین کو مضبوط کریں گی، آپ کے صبر کو بڑھائیں گی اور آپ کے رب کے ساتھ آپ کے رشتے کو اور گہرا کریں گی۔ زندگی کا ہر انسان کبھی نہ کبھی ایسے دور سے گزرتا ہے جہاں اسے لگتا ہے کہ شاید اب سب ختم ہو گیا۔ مصیبتیں ختم ہونے کا نام نہیں لیتی، دعائیں قبول ہوتی نہیں دکھتی اور محنت کا پھل ملتا نہیں نظر آتا۔ لیکن میرے بھائیوں اور بہنوں، یہ وہ وقت ہے جب اللہ اپنے بندے کو سب سے قریب سے دیکھ رہا ہوتا ہے۔ یہ وہ لمحہ ہے جب اللہ آپ کے لیے کچھ اتنا بڑا تیار کر رہا ہوتا ہے کہ آپ کی سوچ اس تک پہنچ بھی نہیں سکتی۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَإِنَّ الْعُسْرِ يُسْرًا، یعنی ہر مشکل کے ساتھ آسانی ہے۔ یہ اللہ کا وعدہ ہے اور اللہ کا وعدہ کبھی ٹوٹتا نہیں۔ آج میں آپ کو ان 5 تکلیفوں کے بارے میں بتانے جا رہا ہوں جن سے اگر آپ گزر رہے ہیں تو سمجھ لیجئے کہ اللہ آپ کو ایک بڑے مقام کے لیے تیار کر رہا ہے۔ یہ تکلیفیں آپ کی کمزوری نہیں بلکہ آپ کی طاقت کا ثبوت ہے۔ یہ درد آپ کا انت نہیں بلکہ ایک نئی شروعات کا اشارہ ہے۔ ایک بار بار ناکامی کا سامنا۔ کیا آپ کو کبھی ایسا لگا کہ آپ کتنی بھی محنت کر لیں لیکن ہر بار ہار ہی ملتی ہے؟ آپ نے بزنس شروع کیا لیکن وہ ڈوب گیا، نوکری کے لیے دن رات محنت کی لیکن ریجیکشن کا جواب ملا، آپ نے سپنے دیکھے لیکن وہ ٹوٹ گئے۔ میرے بھائیوں اور بہنوں، یہ ناکامیاں آپ کی ہار نہیں ہے، یہ اللہ کی طرف سے ایک اشارہ ہے کہ وہ آپ کو ان راستوں سے ہٹا رہا ہے جو آپ کے لیے صحیح نہیں تھے۔ سوچئے حضرت یوسف علیہ السلام کی زندگی کو۔ ان کے اپنے بھائیوں نے انہیں کنویں میں ڈال دیا، انہیں غلام بنا کر بیچ دیا گیا، انہیں جیل میں ڈال دیا گیا۔ کیا اس وقت کسی کو لگتا تھا کہ یوسف علیہ السلام مصر کے حاکم بنیں گے؟ نہیں، لیکن اللہ نے ان کی ہر تکلیف کو ان کی سب سے بڑی کامیابی کا راستہ بنایا۔ تو اگر آج آپ بار بار ہار کا سامنا کر رہے ہیں تو صبر کریں، یہ ہار آپ کی اصلی جیت کا راستہ صاف کر رہی ہے۔ اللہ آپ سے وہ راستے چھین رہا ہے جو آپ کو گمراہ کر سکتے تھے، تاکہ وہ آپ کو اس منزل تک پہنچائے جو آپ کے لیے لکھی گئی ہے۔ 2. اپنوں سے دوری اور دھوکا۔ زندگی کا سب سے بڑا درد تب ہوتا ہے جب آپ کے اپنے ہی آپ کو چھوڑ دیں۔ آپ کا سب سے قریبی دوست، آپ کا پریوار یا وہ لوگ جن پر آپ نے دل سے بھروسہ کیا، وہی آپ کو ٹھکرا دے یا دھوکا دے دے۔ یہ درد ایسا ہے جو دل کو چیر دیتا ہے۔ لیکن میرے پیارے بھائیوں اور بہنوں، جب آپ کے اپنے آپ کو چھوڑتے ہیں تب اللہ آپ کو اپنے اور قریب لاتا ہے۔ قرآن میں اللہ فرماتا ہے وَمَا تَوَفِّیقِی إِلَّا بِاللَّهِ، میری کامیابی صرف اللہ کی مدد سے ہے۔ سورہ ہود 88۔ جب دنیا کے سہارے ٹوٹ جاتے ہیں تب اللہ آپ کو سکھاتا ہے کہ اصلی سہارا صرف اسی کا ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کو ان کے اپنے بیٹے نے ٹھکرا دیا، لیکن اللہ نے انہیں نہ صرف بچایا بلکہ پوری قوم کو بچانے کا ذریعہ بنایا۔ تو اگر آج آپ کے اپنے آپ کو چھوڑ گئے ہیں تو گھبرائیں نہیں، یہ اللہ کا اشارہ ہے کہ وہ آپ کے لیے بہتر لوگ، بہتر رشتے اور بہتر زندگی تیار کر رہا ہے۔ بس اپنے رب پر بھروسہ رکھیں۔ 3. تنہائی کا گہرا احساس۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ آپ بھیڑ میں ہوتے ہیں لیکن پھر بھی دل میں ایک عجیب سی تنہائی محسوس ہوتی ہے۔ آپ کے آس پاس لوگ ہیں، دوست ہیں، رشتہ دار ہیں، لیکن پھر بھی آپ کا دل خالی خالی لگتا ہے۔ میرے بھائیوں اور بہنوں، یہ تنہائی کوئی سزا نہیں ہے، یہ اللہ کا آپ کو اپنے پاس بلانے کا طریقہ ہے۔
जब आप रात के सन्नाटे में सजदे में गिरते हैं, जब आप रोते हुए अपने रब से अपनी तकलीफ बयान करते हैं, तो वो पल अल्लाह के सबसे कीमती पल होते हैं। कुरान में अल्लाह फरमाता है, उद्दूनी यस्तजिब लकुम, मुझे पुकारो, मैं तुम्हारी दुआ कबूल करूंगा। आपकी वो टूटी हुई आवाज, वो आंसू, वो सजदे, ये सब सीधे अल्लाह के अर्श तक पहुंचते हैं। ये तन्हाई आपको सिखाती है कि दुनिया की मोहब्बत झूठी है, लेकिन अल्लाह का इश्क सच्चा है। जब आप अल्लाह के इश्क में डूब जाते हैं, तो फिर कोई तन्हाई आपको परेशान नहीं कर सकती। 4. दुआओं का देर से कबूल होना। कई बार ऐसा होता है कि आप रात दिन दुआ मांगते हैं, आप सजदे में रोते हैं, अल्लाह से मदद मांगते हैं, लेकिन जवाब नहीं मिलता। आपको लगता है कि शायद अल्लाह आपको सुन नहीं रहा, शायद आपकी दुआएं बेकार जा रही हैं। लेकिन मेरे भाइयों और बहनों, अल्लाह आपकी हर दुआ सुनता है, आपके हर आंसू का हिसाब रखता है, आपके दिल की हर धड़कन को महसूस करता है। कुरान में अल्लाह फरमाता है, व असा अन तकरहू शैअन व हुवा खैरुल लकुम। हो सकता है कि तुम किसी चीज को नापसंद करो, लेकिन वही तुम्हारे लिए बेहतर हो। सूरा अल बकरा 216। अगर आपकी दुआ तुरंत कबूल नहीं हो रही, तो इसका मतलब ये नहीं कि अल्लाह ने आपको भुला दिया। इसका मतलब है कि अल्लाह आपके लिए कुछ ऐसा तैयार कर रहा है जो आपकी सोच से भी बड़ा है। हजरत जकरिया अलैहिस्सलाम ने बुढ़ापे तक दुआ मांगी, लेकिन अल्लाह ने उनका इंतजार करवाया ताकि उन्हें हजरत याह्या अलैहिस्सलाम जैसी नेमत दी जाए। तो अगर आपकी दुआएं देर से कबूल हो रही हैं, तो सब्र करें, अल्लाह का वक्त सबसे बेहतर वक्त है। 5. लगातार मुसीबतों का आना। क्या आपको लगता है कि आपकी जिंदगी में मुसीबतें खत्म ही नहीं हो रही? कर्ज, बीमारी, रिश्तों में तनाव, नौकरी की परेशानी या कोई और तकलीफ। मेरे भाइयों और बहनों, ये मुसीबतें आपकी कमजोरी का सबूत नहीं है, ये इस बात का सबूत है कि अल्लाह आपको मजबूत बनाने के लिए आपको आजमा रहा है। हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम की जिंदगी को याद करें। उनकी सारी दौलत चली गई, उनके बच्चे चले गए, उनकी सेहत चली गई, लेकिन उनका यकीन और सब्र अल्लाह पर कभी कम नहीं हुआ, और अल्लाह ने उन्हें दुगनी नेमतों से नवाजा। कुरान में अल्लाह फरमाता है, वलनब्लुवन्नकुम बिशैइम मिनल खौफि वल जुई। हम तुम्हारी आजमाइश जरूर करेंगे डर, भूख और नुकसान से। सूरा अल बकरा 155। ये मुसीबतें इसलिए हैं ताकि आपका दिल अल्लाह के और करीब आए। ये तकलीफें इसलिए हैं ताकि आप समझ सके कि असली ताकत दुनिया में नहीं, बल्कि अल्लाह के भरोसे में है। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, अगर आप इन 5 तकलीफों से गुजर रहे हैं, तो डरे नहीं, घबराए नहीं। ये तकलीफें आपकी हार नहीं, बल्कि आपकी जीत का रास्ता है। ये आंसू, ये तन्हाई, ये नाकामियां, ये सब अल्लाह की रहमत का हिस्सा है। अल्लाह आपको तोड़ नहीं रहा, बल्कि आपको गढ़ रहा है। वो आपको कमजोर नहीं बना रहा, बल्कि आपको इतना मजबूत कर रहा है कि जब वो आपको बड़ा मुकाम दे, तो आप उसे संभाल सके। सोचिए, अगर आपको बिना मेहनत के सब मिल जाए, तो क्या आप उसकी कदर करेंगे? अगर आपको बिना दर्द के सब हासिल हो जाए, तो क्या आप अल्लाह का शुक्र अदा करेंगे? अल्लाह जानता है कि इंसान का दिल कैसे तालीम पाता है, इसलिए वो आपको गिराकर उठाता है, रुलाकर हंसाता है और अंधेरों से गुजार कर रोशनी तक लाता है। आपके हर आंसू का हिसाब अल्लाह के पास है। आपका हर सजदा अल्लाह के सामने दर्ज है। आपकी हर दुआ अल्लाह तक पहुंच रही है। और जिस दिन अल्लाह का वादा पूरा होगा, उस दिन आप देखेंगे कि ये सारी तकलीफें, ये सारा दर्द, ये सारी तन्हाई सिर्फ इसलिए थी ताकि आप उस मुकाम तक पहुंच सके जो अल्लाह ने आपके लिए लिखा है। तो मेरे भाइयों और बहनों, टूटे नहीं, हारे नहीं, मायूस ना हो। जो लोग आज आपको ताने दे रहे हैं,
कल वही आपकी तारीफ करेंगे। जो लोग आज आपको नाकाम समझते हैं, कल वही आपको मिसाल कहेंगे। जो लोग आज आपका मजाक उड़ाते हैं, कल वही आपको सलाम करेंगे। बस सब्र करें, दुआ करें और अपने रब पर पूरा यकीन रखें, क्योंकि अल्लाह अपने बंदे को कभी खाली हाथ नहीं छोड़ता। अगर ये बातें आपके दिल को छू गईं, तो अपने भाइयों और बहनों के साथ जरूर शेयर करें। हो सकता है कि आपकी वजह से किसी का टूटा हुआ दिल सुकून पाए, किसी का यकीन मजबूत हो। हैदर इस्लामिक मोटिवेशन को सब्सक्राइब करें और अल्लाह से दुआ करें कि वो हमें सब्र, यकीन और उसकी रहमत की ताकत दे। आज के इस वीडियो के अंत में मैं कुछ खास लोगों के लिए, हमारे सभी सब्सक्राइबर्स के लिए और पूरी उम्मत के लिए दुआ करने जा रहा हूं। मेरे साथ आमीन कहें और इस दुआ में शामिल हों। आशना बहन जो कहती है कि हमारे वीडियो से उन्हें दिली सुकून मिलता है और उनका पैगाम औरों तक पहुंचता है। ऐ अल्लाह, आशना को सेहत कामिल अता फरमा, उनकी बीमारी को दूर कर और उन्हें हर तकलीफ से निजात दे, उन्हें सुकून, खुशी और लंबी उम्र दे। आमीन सुम्मा आमीन। मोहम्मद फैजान भाई जो बहुत परेशान है और हमारे चैनल के सब्सक्राइबर है, ऐ अल्लाह, मोहम्मद फैजान की हर परेशानी को आसान कर दे, उनके दिल को सुकून अता फरमा, उनकी हर मुश्किल को दूर कर और उन्हें कामयाबी दे। आमीन सुम्मा आमीन। कौसर परवीन बहन जो बिहार से हैं और अपनी शादी मोहसिन के साथ होने की दुआ मांग रही है, ऐ अल्लाह, कौसर परवीन और मोहसिन के निकाह का असबाब बना, उनके वालदैन के दिलों को राजी कर और इस रिश्ते में बरकत दे, उन्हें आपस में मोहब्बत और सुकून की जिंदगी अता फरमा। आमीन सुम्मा आमीन। मोहम्मद असगर भाई जो बोकारो स्टील सिटी झारखंड से हैं, जिनकी शादी टूट गई है, लेकिन वो चाहते हैं कि उनकी बीवी को अपनी गलती का एहसास हो और वो फिर से एक हो सके। ऐ अल्लाह, मोहम्मद असगर और उनकी बीवी के दिलों को जोड़ दे, उनकी बीवी को अपनी गलती का एहसास करा और उन्हें हिम्मत दे कि वो अपनी गलती कबूल करे, उनके रिश्ते में बरकत दे और उन्हें फिर से एक कर दे, उनकी जिंदगी को सुकून और मोहब्बत से भर दे। आमीन सुम्मा आमीन। हमारे सभी सब्सक्राइबर्स और पूरी उम्मत के लिए, ऐ अल्लाह, हैदर इस्लामिक मोटिवेशन के हर सब्सक्राइबर को उनकी दुआओं की कबूलियत अता फरमा, उनकी हर मुश्किल को आसान कर, उनकी जिंदगी में सुकून, कामयाबी और बरकत दे। और ऐ अल्लाह, पूरी उम्मत मोहम्मदिया को अपनी रहमत और हिदायत से नवाज, हमें अपने रास्ते पर चलने की तौफीक दे और जन्नतुल फिरदौस में जगह अता फरमा। आमीन सुम्मा आमीन। मेरे भाइयों और बहनों, इस दुआ में शामिल होने के लिए वीडियो के नीचे आमीन जरूर लिखें।